امریکہ کا ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ، فردو، نطنز اور اصفہان متاثرہ تنصیبات میں شامل۔ امریکی صدر کے علاوہ ایرانی حکام کی جانب سے بھی حملوں کی تصدیق۔ ہمارے جنگی طیارے ایران کی حدود سے باہر آ چکے ہیں، اب دنیا میں امن کا وقت ہے۔ ایران کو جنگ ختم کر کے سنجیدہ مذاکرات کے لیے آمادگی ظاہر کرنا چاہیے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، جوہری تنصیبات محفوظ ہیں، ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کا رد عمل۔ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ، جواب دیا تو پہلے سے کہیں زیادہ طاقت سے حملہ ہوگا۔ ایران پر امریکی حملے شاندار فوجی کامیابی تھے، تہران کی ایٹمی تنصیبات تباہ کر دیں۔ ہمارا مقصد ایران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا ہے۔ ایران نے اب امن کا راستہ اختیار نہ کیا تو مزید اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران میں اہداف مشکل تھے، مربوط حملوں سے بڑی کامیابی ملی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی ویژن پر امریکی قوم سے خطاب۔ امریکہ کا ایران کی پرامن جوہری تنصیبات پر حملہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہر رکن کے لیے حملہ باعث تشویش ہے۔ ایران اپنی خود مختاری، مفادات اور عوام کے دفاع کے لیے تمام آپشنز محفوظ رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار۔ تنازع عالمی امن اور سلامتی کے لیے شدید خطرہ ہے اور یہ قابو سے باہر ہو سکتا ہے، جس سے عام شہریوں، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، خطرناک گھڑی میں افراتفری کی لہر سے بچنا ضروری ہے، انتونیو گوتریس کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملہ، امریکی کانگریس کے ارکان صدر ٹرمپ پر برہم۔ حملہ امریکی صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد بن سکتا ہے۔ کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر بمباری کا تباہ کن فیصلہ آئین اور کانگریس کے جنگی اختیارات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ ٹرمپ نے جذبات میں آ کر ایک ایسی جنگ کا خطرہ مول لیا ہے جو ہمیں نسلوں تک الجھا سکتی ہے۔ امریکی ارکان کانگریس کا ایکس پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی استنبول میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی موجود۔ دونوں برادر ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ایران پر اسرائیل کی جارحیت تمام عالمی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ ایران کی جغرافیائی خود مختاری اور حق دفاع کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ملاقات میں فریقین کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ترجمان دفتر خارجہ۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی باعث تشویش، اسرائیلی جارحیت سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق۔ صہیونی حکومت کے اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں، ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے، فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسلاموفوبیا کی روک تھام کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے، درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کا استنبول میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ مسلمانوں کا اتحاد ناگزیر، متحد ہو کر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز بلند کریں۔ اسرائیلی اقدامات بے لگام، جارحانہ اور غیر قانونی ہیں۔ ہم امن کے داعی ہیں، خطے کو مزید تباہی اور خونریزی سے بچانا ہے، ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ ایران اور غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، عالمی برادری سے اسرائیلی جارحیت رکوانے میں کردار ادا کرنے پر زور۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے، سیکرٹری جنرل کا OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ سماجی شعبے کے تحفظ کے لیے حکومت کا ایک اور اہم منصوبہ، صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کا باضابطہ اجرا کیا۔ مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ ہنر بھی سکھایا جائے گا۔ محنت کش کا بیٹا ہنر سیکھ کر اپنے خاندان کی کفالت اور قوم کی خدمت کر سکتا ہے۔ IT، تعمیرات سمیت مختلف شعبوں میں معیاری تربیت دی جائے گی۔ پروگرام کے ذریعے جرمن اور چینی زبانیں بھی سکھائی جائیں گی۔ صدر آصف علی زرداری۔ آئندہ سال کے حج آپریشن کی تیاری کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی وزارت مذہبی امور کو تیاری اور نجی حج اسکیم کو ریگولرائز کرنے کی ہدایت۔
आज़मीन हज की खिदमत में किसी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं होगी। सऊदी अरब की जानिब से जारी करदा हज पॉलिसी से लाहेअमल मुरतब किया जाए। वज़ीर आज़म। पाकिस्तान का माशी सफर, SIFC की कामयाबी के 2 साल, ज़राअत के शोबे में इस्लाहात, जदीद तरीक़ाकार और कारपोरेट फार्मिंग से पैदावार और बरामदात में इजाफा हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए पॉलिसी इक़दाम किए गए। IT बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। SIFC ने सिर्फ गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ नहीं दिया बल्कि मईशत में एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफियत को भी यकीनी बनाया। SIFC आज सरमायाकारी, तरक्की और एक खुशहाल पाकिस्तान की पायदार ज़मानत बन चुका है। गजा में इजरायली फोर्सेस के हमले जारी, खुराक की तलाश में निकलने वालों समेत 26 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 48 घंटे में मजीद 202 फलस्तीनी शहीद, 1037 जख्मी। खान यूनिस में पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर भी हमले। गुज़श्ता 19 माह से जारी सहूनी फोर्सेस की जारहियत में 56,000 के करीब फलस्तीनी शहीद, 1,31,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। सिंता सियासी नहीं, आलमी मुआहिदा है, इसे यकतरफा मुअत्तल करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान आलमी मुआहिदों के तकद्दुस की खिलाफ वर्जी है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना गैर जिम्मेदाराना अमल है। इस तरह का अमल खतरनाक मिसाल कायम करता है। भारत फौरी तौर पर सिंतास मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद बहाल करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मुल्क में प्री मानसून का आगाज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में कल तक मजीद बारिशों का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और गुजरात में 40 से 60% तक ज्यादा बारिशें मुतवक्के। मशहूर और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को अपने मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। अमजद साबरी ने दुनिया के 17 से ज़्यादा ममालिक में फ़न कव्वाली को जदीद अंदाज से मुतारिफ कराया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़न खिदमात के एतराफ़ में उन्हें तमग़ा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। न्यूजीलैंड ने हॉकी नेशंस कप जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 2 के मुकाबले में 6 गोल करके एजाज का कामयाबी से दिफा किया। न्यूजीलैंड ने पहले, दूसरे और चौथे क्वार्टर में गोल किए। पाकिस्तान की जानिब से जिक्रिया हयात और सुफियान खान गोल करने में कामयाब रहे। अमेरिका में फीफा क्लब वर्ल्ड कप, जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। बायर्न म्यूनिख ने अर्जेंटीना के क्लब बोका जूनियर्स को 2-1 से हराकर लास्ट 16 के लिए क्वालिफाई कर लिया। इतालवी क्लब इंटर मिलान की जापानी क्लब अरावा को रेड डायमंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। ब्राजीलियन क्लब फ्लुमिनेंसी ने जनूबी कोरिया के अल्सन एसी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से मात दी। आलमी नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज की फतूहात का सिलसिला जारी। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। जमहूरिया चेक के जेरी लहीका ने बरतानिया के जैक ड्रेपर को शिकस्त देकर इवेंट से चलता गया।
और जर्मनी में WTA 500 बर्लिन ओपन, आलमी नंबर 1 बेलारूस की आरियाना सबालेंका को सेमीफाइनल में शिकस्त। जमहूरिया चेक की मार्कीटा वेंड्रोसोवा ने हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फाइनल वेंड्रोसोवा और चीन की वांग शिनजू के दरमियान खेला जाएगा। Game set Medua. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले एक अहम खबर आपको देंगे। अमेरिका ने ईरान की 3 एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया है। इन तंसीबात में फर्दो, नतंज और अस्फहान शामिल हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों की तस्दीक करते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि हमारे तमाम जंगी तैयारे हमले के बाद बहिफाजत ईरान की सरहदों से निकल आए हैं। उन्होंने कहा कि फर्दो एटमी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब दुनिया में अमन का वक्त है और ईरान को संजीदा मुज़ाकरात के लिए आमादगी ज़ाहिर करनी चाहिए। बाद में टेलीविजन पर अमेरिकी कौम से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि तेहरान ने जवाबी हमला किया तो जवाब पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर होगा। उन्होंने कहा कि अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा होगा। सदर ट्रंप ने कहा कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मकसद ईरान की जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को ख़त्म करना था और हम अपने मकसद में कामयाब रहे। अमरीकी सदर ने कहा कि बहुत से अहदाफ रह गए हैं, अमन ना हुआ तो दुरुस्तगी के साथ दीगर अहदाफ के पीछे भी जाएंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमन की तरफ आना होगा। अमन ना होने की सूरत में मुस्तकबिल के हमले बहुत ज़्यादा शदीद होंगे। अमरीकी सदर का कहना था कि हमलों का मकसद जौहरी खतरे को रोकना था। फ़िज़ाई हमले शानदार फौजी कामयाबी है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की वजह से मशरक़ वुस्ता और दुनिया भर में हज़ारों लोग हलाक हुए। मैंने आइंदा ऐसा न होने का फैसला किया है। ईरान ने फर्दो, नतंज और इस्फहान में जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की तस्दीक कर दी है। ईरानी हुक्काम ने एक बयान में कहा कि हमले के बाद कोई ताबकारी नहीं फैली और ना ही शहरियों को कोई खतरा है। ईरान ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी फ़ज़ाई हमले के बाद कुम शहर और इर्द गिर्द के इलाकों के मकीनों को किसी किस्म का खतरा लाहक नहीं। फर्दों की जौहरी तंसीब के आसपास ताबकारी के फैलाव के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। ईरान के कौमी जौहरी सलामती के मरकज़ ने भी तस्दीक कर दी है कि ताबकारी के असरात की कोई अलामात रिकॉर्ड पर नहीं आई, इसलिए आसपास के रिहायशियों को किसी खतरे का सामना नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन के लिए यह हमला बाइस तशवीश है। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले के बाद मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से रद्द अमल सामने आ गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान के खिलाफ अमरीकी हमले पर तशवीश जाहिर करते हुए मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। न्यूजीलैंड के वज़ीर ख़ारजा विंस्टन पीटर्स ने कहा कि मशरक़ वुस्ता में जारी फ़ौजी कार्रवाइयाँ इंतहाई तशवीशनाक हैं, मज़ीद बिगाड़ से बचना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड पुरजोर अंदाज में सिफारती कोशिशों की हिमायत करता है और तमाम फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात की तरफ लौटने की अपील करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिफारतकारी ही पायदार हल फ्राहम कर सकती है, ना कि मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा कि हम वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि मशरक़ वुस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल नहायत गैर मुस्तहकम है। हम मुसलसल कशीदगी में कमी, मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर देते हैं। क्यूबा के सदर मिगुएल दियाज कानेल ने अमरीकी बमबारी की शदीद मसम्मत करते हुए कहा कि यह अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी और एक ख़तरनाक इजाफा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यह कदम इंसानियत को एक ऐसे बहरान में धकेलता है जिसके नताइज नाकाबिले वापसी हो सकते हैं। चिली के सदर ने अमरीकी इक़दाम को गैर कानूनी करार देते हुए कहा कि ताकत रखना आपको इसके इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देता जब वो कवानीन की खिलाफ वर्जी हो जो हमने बतौर इंसानियत खुद बनाए हैं, चाहे आप अमरीका ही क्यों ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने अमरीकी हमले को कशीदगी में ख़तरनाक इजाफा करार देते हुए कहा कि तनाज़ा आलमी अमन और सलामती के लिए शदीद खतरा है और ये काबू से बाहर हो सकता है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमले के आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। उन्होंने कहा कि खतरनाक घड़ी में अफरा तफरी की लहर से बचना ज़रूरी है। आलमी इदारे के सरबराह ने मजीद कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है।
अमन ही वाहिद उम्मीद है। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमले के बाद अमरीकी अरकान कांग्रेस ने सदर ट्रंप पर बरहमी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार करते हुए अरकान कांग्रेस ने कहा कि ईरान पर हमला सदर ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की बुनियाद बन सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पर बमबारी का तबाहकुन फैसला आइन और कांग्रेस के जंगी इख्तियारात की संगीन खिलाफ वर्जी है। एलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ ने अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप ने जज्बात में आकर एक ऐसी जंग का खतरा मोल लिया जो हमें नस्लों तक उलझा सकती है। इल्हाम उमर और दीगर अरकान कांग्रेस ने भी ईरान की जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले पर शदीद तनकीद की है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और ईरानी हममनसब डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर यूरोपीय ताकतों और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात को तेज करने पर इत्तेफाक किया है। फ्रांस के सदर ने कहा कि यकीन है जंग और बड़ी तबाही से बचने का वाहिद रास्ता मौजूद है। उन्होंने ईरान से मुतालबा किया कि जौहरी हथियार का हुसूल किसी सूरत नहीं होना चाहिए। ईरानी हममनसब ने कहा कि ईरान जौहरी हथियार तैयार करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन जौहरी तवानाई और तहकीक के अपने हक को जारी रखेगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि ईरान के मुबैना तौर पर एटमी हथियार हासिल करने के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। स्काई न्यूज़ अरेबिया से गुफ्तगू के दौरान रूसी सदर ने कहा कि जौहरी तवानाई को पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना ईरान का हक है और रूस इस हवाले से ईरान की मदद को तैयार है। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर जारी मुज़ाकराती अमल से मुतालिक उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी तफसीलात हैं जिन पर इत्तेफाक मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी को भी ऐसे शवाहिद नहीं मिले जो ये ज़ाहिर करें कि ईरान के पास जौहरी हथियार मौजूद हैं। उधर गजा में इसराइली फोर्सेज के फ़िज़ाई और ज़मीनी हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। काबिज़ फ़ौज के ताज़ा हमलों में मज़ीद 26 फ़लस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 202 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 1037 ज़ख्मी हुए। न्यूज़ एजेंसी वफा के मुताबिक जनूबी गजा में बेघर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाने वाले इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 3 अफराद शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। खान यूनिस में इजरायली फ़ज़ाई हमलों में बेघर अफराद के खैमों को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 अफराद शहीद और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। गुज़श्ता 19 माह से जारी सहूनी फोर्सेस की जहरियत में 56,000 के करीब फ़लस्तीनी शहीद और 1,31,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि इसराइल इस्तिस्ना के साथ मशरिक़ वस्ता के अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है। इस्तांबुल में OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल इजलास से खिताब में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान गजा में फौरी सीज़ फायर का मुतालबा और इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के हक़ दिफा की हिमायत करता है। तफसील बताएंगी नमरा सुहेल। OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को इस वक्त बेपनाह चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम उम्मा के मफादात का फ़रोग़ पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का जुज़्व है। long unresolved conflicts and situations of foreign occupation from Palestine to Jammu and Kashmir continue to simmer. Islamophobia, discrimination and negative stereotyping of Muslims are on the rise. नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरान पर इसराइली जारहियत मशरिक़ वस्ता में इसराइल के अस्करियत पसंदाना अज़ाइम की अक्कास है। Pakistan strongly condemns Israel's unprovoked aggression against the Islamic Republic of Iran in violation of international law and the UN Charter. Israeli aggression poses a great threat to the regional and global peace and security. We fully support Iran's inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter in response to the blatant and unprovoked Israeli aggression. पाक भारत कशीदगी का जिक्र करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि भारत को पाकिस्तान का पानी रोकने नहीं दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। अफगानिस्तान इलाकाई अमन के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उनके मुंजमद असासों की बहाली और इलाकाई रवाबित का ख्वाहां है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی استنبول میں OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس کے موقع پر ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم نے صدر رجب طیب ایردوان کو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچائیں اور پاکستان اور ترکی کے مابین پائیدار تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ دونوں ملکوں کی قیادت نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر جارحیت کو عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی۔ دونوں رہنماؤں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت ایران کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں اسرائیل ایران کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ عالمی برادری خطے میں امن اور استحکام کی بحالی میں اپنا کردار ادا کرے۔ دونوں فریقین نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو فوری طور پر روکنے اور غزہ کے محصور لوگوں کو انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے صدر ایردوان کو اسلامی تعاون یوتھ فورم کی جانب سے OIC وزراء خارجہ کونسل اجلاس کے کامیاب انعقاد اور اسلامک کوآپریشن یوتھ فورم کی جانب سے ایوارڈ ملنے پر مبارکباد دی۔ سماجی تحفظ کے شعبے میں حکومت کا ایک اور اہم قدم، صدر مملکت آصف علی زرداری نے بے نظیر ہنر مند پروگرام کا باقاعدہ اجرا کر دیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد اکرام چودھری۔ سماجی شعبے میں عالمی سطح پر تسلیم کیے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار وسیع کرتے ہوئے ایک اور منصوبے کا آغاز کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری نے بے نظیر ہنرمند پروگرام کے پورٹل کا اجرا کیا۔ اس پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کو مالی امداد کے ساتھ مختلف شعبوں میں معیاری تربیت بھی فراہم کی جائے گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی، ہیلتھ کیئر، کنسٹرکشن اور دیگر شعبوں میں تربیت کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے دن اس اہم منصوبے کے اجرا پر خوشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہداء کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سماجی اور معاشی ترقی کے اہداف حاصل کریں گے۔ We intend to do more. We inshallah will do more. Soon, every household, every kid, every child, we will educate. And that is the philosophy of People's Party, originated by Shaheed Zulfikar Ali Bhutto and carried forward by Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. According to her mindset and wisdom, we follow suit. Hopefully, the skills that we develop will not just be for the country, but for the abroad also. چیئرپرسن BISP روبینہ خالد نے منصوبے کے اہم خدوخال بیان کرتے ہوئے کہا کہ اپنے قائدین کے ویژن کے مطابق معاشی خود مختاری، سماجی انصاف، خوشحالی اور خواتین کی ترقی کے لیے جدوجہد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے BISP کے تحت بے نظیر کفالت، نشو و نما پروگرام، تعلیمی وظائف کی فراہمی اور دیگر منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ وفاقی سیکرٹری عامر علی احمد نے بریفنگ میں بتایا کہ بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے دور دراز علاقوں میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا دائرہ کار بڑھانے کے لیے موبائل رجسٹریشن کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ محمد اکرام چودھری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارت مذہبی امور کو ابھی سے حج کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اجلاس کی صدارت کے دوران وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ سعودی عرب کی جانب سے جاری حج پالیسی سے لاہعمل مرتب کیا جائے۔ آئندہ برس حاجیوں کی خدمت میں کسی قسم کی لاپرواہی قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نجی حج اسکیم کو ریگولرائز کیا جائے اور آئندہ برس حج کے حوالے سے مدت کا تعین کر کے جلد از جلد سفارشات پیش کی جائیں۔ اجلاس میں وفاقی وزراء مصدق ملک، سردار محمد یوسف اور وزارت کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ پاکستان نے سنتاس معاہدے پر بھارتی وزیر داخلہ کا بیان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنی جانب سے اس معاہدے کا مکمل احترام کرتا ہے اور اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارتی وزیر داخلہ کے بیان پر رد عمل میں کہا کہ یہ بیان بین الاقوامی معاہدوں کی حرمت کی کھلی خلاف ورزی اور سنگین بے حسی کا مظہر ہے۔ معاہدہ کوئی سیاسی مفاہمت نہیں بلکہ ایک بین الاقوامی معاہدہ ہے جس میں کسی یک طرفہ اقدام کی کوئی گنجائش نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ اس قسم کا طرز عمل نہایت خطرناک اور غیر ذمہ دارانہ نظیر قائم کرتا ہے جو بین الاقوامی معاہدوں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتا ہے اور ایسی ریاست کی سنجیدگی پر سوال اٹھاتا ہے جو کھلے عام اپنے قانونی وعدوں سے انحراف کرتی ہے۔
पाक भारत जंग बंदी, भारतीय हुकूमत और मीडिया अमरीकी सदर ट्रंप के किरदार कुशी करने लगे। अमरीकी सदर ट्रंप का 10 मई को एक्सपोज के जरिए पाक भारत जंग बंदी का ऐलान करते ही भारतीय मीडिया एंकर अर्नब गोस्वामी ने अमरीकी सदर को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अर्नब गोस्वामी ने अपने प्रोग्राम में कहा कि ट्रंप अपना बयानिया बेच रहा है। ये शख्स इसराइल, हमास और रूस यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी नहीं करा सका। ट्रंप की रेटिंग गिर रही है तो ये पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है। भारतीय मीडिया में ट्रंप का ये बयान भी चलाया गया जिसमें उनका कहना था कि मैंने जंगबंदी नहीं कराई बल्कि मदद की है। अर्नब गोस्वामी का मजीद कहना था कि 28 अप्रैल के बाद ट्रंप की पोजीशन बदली और वो पाकिस्तान का हिमायती बन गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय मीडिया मजीद बदहवास हो गया। भारतीय सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज के हवाले से भी निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि अमरीकी सदर पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट खुद लेना चाहते हैं मगर ये मुमकिन नहीं है। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के मुताबिक मोदी ने कहा है कि पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप का कोई किरदार नहीं था। भारतीय एक्स अकाउंट पर भी ट्रंप के हवाले से कहा गया है कि एक रोज़ ट्रंप कहता है कि उसका इसराइल के ईरान हमले से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि दूसरे रोज़ अमरीका कहता है कि उनका ईरान की फ़ज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मेज़बानी करके भारत के दावों की नफ़ी कर दी है। और मोदी सरकार की जानिब से अडानी ग्रुप को नवाजे जाने के लिए कौमी सलामती के उसूलों की पामाली का इंकशाफ हुआ है। अप्रैल 2023 में मोदी हुकूमत ने पाक भारत सरहद के करीबी इलाकों में बरसों से सिक्योरिटी वजूहात की पाबंदियों में अचानक नरमी कर दी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की पाबंदियों में नरमी के बाद अडानी ग्रुप ने 445 मुरबा किलोमीटर ज़मीन पर बिला रोक टोक कब्जा हासिल किया है। भारतीय रियासती इदारे सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ज़ेरे कंट्रोल ज़मीन खामोशी से अडानी ग्रुप को निजी मफादात के लिए मुंतकिल कर दी गई। मोदी सरकार ने ग्रीन एनर्जी की आड़ में कौमी वसाइल को मखसूस सरमायादार अडानी ग्रुप के मुनाफे के लिए कुर्बान कर दिया। भारतीय दिफाई माहिर अजय शुक्ला के मुताबिक सरकार की जानिब से दिफाई सरहदी पाबंदियों में नरमी ने अडानी और मोदी गठजोड़ को बेनकाब कर दिया। गार्जियन के मुताबिक अडानी पर अमरीकी अदालतों में $265 मिलियन की रिश्वत के इल्ज़ामात भारत के लिए बाइसे रुसवाई हैं। करप्शन इल्ज़ामात के बावजूद मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप की हिमायत में माशी फैसले लिए। इस स्कैंडल के बाद टोटल एनर्जीज जैसे सरमायाकार भारत की तवानाई मंसूबों से दस्तबरदार हो चुके हैं। अमरीका अडानी को एहतसाब के गिरहरे मिला रहा है। मोदी सरकार की मुजरमाना खामोशी हिमायत इसके मुमकिन किरदार को बेनकाब करती है। मोदी सरकार की पॉलिसी साजी अब अवामी फलाह की बजाय मखसूस सरमायादारों के मफाद पर मबनी है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की हालत इज़हार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तवील क़ैद और गैर इंसानी हालात की वजह से नज़रबंद अफराद सेहत के संगीन मसाइल से दो चार हैं। KMS के मुताबिक मीर वाइस उमर फारूक ने श्रीनगर में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शबीर अहमद शाह की तिहाड़ जेल नई दिल्ली में सेहत इंतहाई ख़राब है, उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि नज़रबंद रहनुमा के अहल खाना को 2 बरस से उनके साथ फ़ोन पर भी बात करने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने शबीर अहमद शाह की दरख्वास्त ज़मानत भी मुस्तरद कर रखी है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। मीर वाइस उमर फारूक ने भारतीय हुकूमत से अपील की है कि वो शबीर अहमद शाह को फौरी तिब्बी सहूलियात फराहम करने के अलावा उनके अहल खाना को उन तक रसाई दे। काबिज भारतीय फोर्सेज ने ज़िला सांबा में एक खातून समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय पुलिस ने ज़िला बांडीपुरा से भी एक नौजवान को गिरफ्तार किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम वाक़े के बाद अब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका, जिनमें ज़्यादातर नौजवान शामिल हैं। भारतीय रियासत मणिपुर तवील अरसे से मोदी सरकार की सियासी नाअहली, समाजी गैर जिम्मेदारी और सिक्योरिटी गफलत का शिकार है। मई 2023 से शुरू होने वाली खूनी झड़पें अब तक मुतादिद जानें ले चुकी हैं। इन झड़पों से ये वाज़ेह हो गया है कि मोदी सरकार अपनी रियासती रिट मुकम्मल तौर पर खो चुकी है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल निशी कांता सिंह ने मणिपुर बहरान को महज फिरका वाराना नहीं बल्कि मुनज़्ज़म सिक्योरिटी नाकामी का नतीजा करार दिया। मणिपुर तसादुम का पहला मरहला छोटे पैमाने की झड़पों पर मबनी था, जबकि दूसरा मरहला मुनज़्ज़म हमलों की सूरत में शुरू हुआ। निशी कांता सिंह ने बताया कि मणिपुर के पुलिस स्टेशन से 4000 से ज़्यादा हथियार चोरी हुए, जबकि ख़वातीन से ज़्यादती, घरों की तबाही और मासूम अवाम के कत्ल पर मोदी सरकार की मुजरमाना खामोशी रियासती बेहिसी की वाज़ेह मिसाल है। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद हुकूमत की जानिब से ना कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने आई और ना ही कोई हंगामी सिक्योरिटी प्लान नाफिज किया गया। रियासत भर में इंटरनेट की बंदिश और इंसानी हुकूक की तंजीमों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। 50,000 से ज़्यादा शहरी रिलीफ कैंप्स में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। 180 से ज़्यादा अफराद हलाक, जबकि सैकड़ों देहात मुकम्मल तौर पर खाकसर हो चुके हैं।
भारत में मोदी की जानिब से कमज़ोर तबकात के साथ ज़ालिमाना सलूक बेनकाब हो गया है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश का शहर विशाखापट्टनम में मोदी की तशहीरी मुहिम की हकीकत अय्या हो गई। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रा बाबू नायडू और वजीर माहौलियात, साइंस और टेक्नोलॉजी पवन कल्याण अखलाकी पस्ती का शिकार हो गए हैं। दोनों वज़रा ने कबायली बच्चों को फर्श पर सोने पर मजबूर किया और बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रखा। मासूम भारतीय बच्चे मोदी सरकार के PR जुनून की भेंट चढ़ा दिए गए। गुर्बत और बेबसी का शिकार मासूम कबायली बच्चे महज एक तशहीरी शो का हिस्सा बनने पर मजबूर हो गए। मोदी सरकार ने योगा डे के नाम पर मासूम बच्चों का इस्तेहसाल किया और सियासी फायदे की भूख में मोदी सरकार का अखलाकी दिवालियापन पूरी दुनिया के सामने आया हो गया। भारत का गोदी मीडिया खामोश तमाशाई मोदी सरकार की शर्मनाक करतूत पर पर्दा डालने में मसरूफ़ अमल है। रुख करेंगे दीगर अहम कौमी खबरों का। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का बजट इजलास पीर के रोज दोपहर 4 बजे असम्बली हॉल जोटियाल गिलगित में होगा। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली नज़ीर अहमद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सूबाई वज़ीर ख़जाना इंजीनियर इस्माइल माली साल 2025-26 का मिज़ानिया पेश करेंगे। इससे कबल वज़ीर आला गुलबर खान की सदारत में सूबाई काबीना का इजलास होगा, जिसमें माली साल 2025-26 के बजट तखमीने की मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान ने मईशत को मजबूत बनाने और तरक्की की नई राहें हमवार करने के लिए इनकलाबी कदम उठाया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तमाम विफाकी और सूबाई इदारों को इकट्ठा करता है, जिसका मकसद सरमायाकारी को फ़रोग़ देना, शफाफ फैसले लेना और मरबूत हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना है। जिसका मकसद था मईशत की बहाली, सरमायाकारी का फ़रोग़ और एक मजबूत खुद कफील पाकिस्तान की बुनियाद रखना। और ये इक़दाम था स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी SIFC का क़याम। SIFC का मकसद मुताल्लिका वफाकी और सूबाई इदारों को एक मुअस्सर प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना है। एक ऐसा मुश्तरका प्लेटफॉर्म जहां बर वक्त फैसले हों, वाज़े इस्लाहात हों और यकसू हिकमत अमली अपनाई जाए। SIFC ने सिर्फ सरमायाकारी को फरोग नहीं दिया, बल्कि पाकिस्तान की मईशत को एतमाद, सिक्योरिटी और शफाफियत के साथ आगे बढ़ाया। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के मानने वाले बराबर के शहरी हैं, जिन्हें आईनी तौर पर मुकम्मल हुकूक हासिल हैं। कराची में मुख्तलिफ मज़ाहिब और समाजी हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि नस्ली या लिसानी नफरत जहालत है। तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। साया-ए खुदाए जुल्जदार तर्जुमाने माजी शाने हाल। साया-ए खुदाए जुल्जदार तर्जुमाने माजी शाने हाल। मैं जिंदाबाद हूँ, मैं जिंदाबाद हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान। सबकी तरफ से पाकिस्तान आर्मी को बहुत बहुत मुबारकबाद है की कामयाबी से that Pakistan Army is #1 army in the world and we are proud of them. 80 अरब डॉलर वाले को आपने बिल्कुल तहस नहस कर दिया और जो आपने वाकई जो उनका चेहरे था पूरी दुनिया में तो कोई गिराकिस्तान ने गिराया था, वो भी आज पाकिस्तान आर्मी ने करके दिखाया। खासकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, तो मैंने ये बयान दिया कि आप सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे वेद शास्त्र जो हमारी मजहबी किताबें हैं इसी दरिया पे उतरी हैं। पाकिस्तान ने हमारे दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है और दुनिया भर की सिख बरादरी और पाकिस्तान में बसने वाली सिख बरादरी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। जो हमारे नौजवानों ने जिस तौर से पहलगाम की उस दहशतगर्दी को जो उन्होंने खुद की,
और हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा के हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की, उसका मुंह तोड़ जवाब देकर पाकिस्तान का और पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान की आर्मी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। हम जो पाकिस्तान में हिंदू रह रहे हैं उसका हम पे भी इफ़ेक्ट हो रहा है। हमारे नाम को उस बंदे ने बदनाम किया। उसने ये जो एक माइंडसेट बनाया कि हमारे पास वसाइल कम है, हमारे पास वसाइल ज़रूर कम होंगे लेकिन हमारा जिगरा बड़ा है। हमारी सोच, उसकी सोच जहाँ ख़त्म होती है हमारी शुरू होती है, और वो हमने उसको जवाब दिया। पाकिस्तान के मसीह अपनी पाक फौज के साथ सीना बसीना, बाजू से बाजू मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर हम पाक फौज के साथ होंगे। जो एक बुनियानुम मरसूस का एक लफ्ज़ जो ऐड किया गया हमारी वॉर के अंदर और उसको एक टाइटल दिया गया, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। तो ये बुनियानुम मरसूस का जो टाइटल और ये नाम दिया गया, मैं समझता हूँ कि इससे खूबसूरत टाइटल नहीं था। ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी थी। बहुत सारे जो हमें डाउट्स हैं जो हम लोगों को नहीं पता होते और हम लोग सोशल मीडिया पे चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उन सारी चीज़ों का जो है बहुत अच्छा हमें यहाँ जवाब मिला। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट किरदार ये है कि हमारी पाकिस्तान की फ़ौज का जो मोरल है काफ़ी बुलंद है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ये बहुत खुशाइन बात है। पाकिस्तान की जो इमेज है इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड वो बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है। बिजनेस कम्युनिटी की जो मुख्तलिफ एग्जीबिशंस होती हैं दुनिया के अंदर, उसके अंदर भी पाकिस्तान को बहुत पज़राई मिल रही है। मुझे ये नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान की मखसूस 8-9 लाख फौज है, बल्कि आपने जिस तरह कौम को ब्रीफ किया, कौम को तैयार किया, तो मुझे यही लग रहा 24-25 करोड़ अवाम पाकिस्तान की फौज बनी हुई थी। मर्दरी से बेहतर हमारे इतर पट्टे बच्चे रोडों पे आ गए और सब यही कह रहे थे कि स्टार्ट तुम करोगे और खत्म हम करेंगे और अपनी लैंग्वेज से करेंगे। चेयरमैन मरकजी इत्तेहाद कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मुल्की सलामती, खुद मुख्तारी और कौमी वहदत के तहफ़्फ़ुज़ में उनका किरदार काबिल तहसीन है। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अगर हमारी अफ़वाज मजबूत ना होती तो आज हम भी इराक और लिबिया की तरह टूट चुके होते। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान का दुश्मन मक्कार, अय्यार और झूठा है, जिसने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान पर हमला किया, मगर पाक फौज और हुकूमत दुनिया को बता चुकी है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने गजा और ईरान पर इजरायली हमलों की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुहर्रम उल हराम के हवाले से अब्दुल खबीर आज़ाद ने खबरदार किया कि कोई भी खतीब या जाकिर अगर इश्तियाल अंगेज़ी करेगा तो कानून हरकत में आएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान सिख मैरिज एक्ट मंजूर और इस पर अमल दरामद करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया है। ननकाना साहिब में इस कानून के तहत सिख बरादरी के शादीशुदा जोड़ों के कवायफ का इंदराज और कंप्यूटराइज्ड निकाह नामे जारी करने का आगाज कर दिया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। पंजाब हुकूमत की तरफ से ननकाना साहब में सिख मैरिज एक्ट के तहत शादीशुदा जोड़ों के अंदराज के लिए 2 निकाह रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए हैं, जिन्होंने नए और पुराने शादीशुदा जोड़ों के कवायफ का अंदराज और कंप्यूटराइज निकाह नामे जारी करने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पहला वो मुल्क है जहाँ पे सिख मैरिज एक्ट पास हुआ है। पासपोर्ट बनवाना हो या ID कार्ड बनवाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो वहाँ पे अनंतकार जो सर्टिफिकेट उसकी ज़रूरत थी, तो जिन के सर्टिफिकेट बनाने थे वो आ रहे हैं और उनके सर्टिफिकेट बनाना हमने शुरू कर दिए। सिख बरादरी का कहना है कि पाकिस्तान में सिख मैरिज एक्ट की मंजूरी और अमल दरामद भारत समेत ऐसे तमाम ममालिक के लिए एक मिसाल है जहां सिखों की आबादी लाखों और करोड़ों में है। उन्होंने सिख कौम को अलग पहचान देने पर हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया है। सिखों को अपनी पहचान मिल गई और पहचान दी इस मुल्क पाकिस्तान ने कि यहाँ हजारों की तादाद में सिख होने के बावजूद मैरिज एक्ट लागू हो चुका है। वहाँ आपके पास करोड़ों की तादाद में सिख बसते हैं, उनको उनके हकूक नहीं मिल रहे। पहले प्रॉब्लम ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ बहुत ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। शुरुआत ਉੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ इंडिया तो, लेकिन उन्होंने नहीं की थी। पंजाब हुकूमत की तरफ से इस कानून के तहत दूसरे शहरों में भी निकाह रजिस्ट्रार मुकर्रर किए गए हैं। इस कानून पर अमल दरामद के बाद सिख बरादरी के विरासत और शनाख्ती दस्तावेजात बनाने के मसाइल हल होंगे। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब।
जहान कव्वाली के मशहूर और मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को अपने मताहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। अमजद साबरी की फ़नी ज़िंदगी पर देखेंगे सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। खूबसूरत आवाज़ व अंदाज के बाइस फ़न कव्वाली में मुनफरिद मकाम के हामिल अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची में मारूफ कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के घर पैदा हुए। उन्हें कव्वाली का फ़न विरसे में मिला। अमजद साबरी ने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ अपने वालिद की मशहूर ज़माने कव्वाली ताजदारे हरम से किया, जो सुनने वालों में बेहद मकबूल हुई। अमजद साबरी के पाकिस्तान टेलीविज़न पर कव्वाली के अंदाज में गाए हुए शायर मशरिक अल्लामा इकबाल के लाफानी कलाम शिकवा और जवाब शिकवा ने अमजद साबरी को शोहरत दवाम बख्शी। साज खामोश है, फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम, ऐ खुदा अमजद साबरी ने दुनिया के सदर से ज़ायद ममालिक में फ़नी कव्वाली को जदीद अंदाज से मुतारिफ कराया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ़नी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। अमजद साबरी को 22 जून 2016 को कराची के इलाके लियाकताबाद में फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। अपनी पुरसोज आवाज़ और गायकी के मुनफरिद अंदाज के बाइस वो आज भी अपने मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में SNGPL के ताउन से तैयार होने वाला बोटेनिकल गार्डन इल्म, माहौल और फितरत की हसीन हम आहंगी का नमूना है। रिपोर्ट करेंगे फरहान मिर्जा। 7 कनाल रकबे पर मुश्तमिल ये बोटेनिकल गार्डन SNGPL के ताउन से मुकम्मल होगा, जिस पर तकरीबन 1 मिलियन रुपए की लागत आएगी। यहाँ 44 से ज़ायद इकसाम के पौधे लगाए जा रहे हैं, जिनमें साइंसी अहमियत के हामिल पीपल, नीम, कनीर और गुले मोर शामिल हैं। ये गार्डन न सिर्फ तालीमी तहकीक के लिए एक ओपन लैब है, बल्कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कमी, ऑक्सीजन की फरहमी और माहौलियाती तवाजुन में भी कलीदी किरदार अदा करेगा। यहाँ मौजूद हर पौधा एक जानदार साइंसी बाब की तरह है, जो तलबा को कुदरत से हम कलाम करता है। यहाँ वॉकिंग ट्रैक होगा, यहाँ पे फैमिली, स्टूडेंट्स और लोकल कम्युनिटी जो है इस पूरे एरिया की, वो यहाँ विजिट करेगी। इफ्तिताई तकरीब में वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद रजवाना ने इसे यूनिवर्सिटी की माहौलियाती वाबस्तगी की अलामत करार दिया, जबकि डॉक्टर मुकर्रब अली की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। पौधे जो है वो हर चीज़ का हल है, वो क्लाइमेट चेंज हो, वो कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हों, वो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हों, पौधे जो है उनका हल है। और वो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी एक हाइबरनेशन और एक सुकून की फ़िज़ा वहाँ पे बनती है। बोटेनिक गार्डन को यहाँ पे डेवलप कर रही है, जिससे एक तो एनवायरनमेंट को एक पॉजिटिव हम कंट्रीब्यूट करेंगे। ये गार्डन सिर्फ पौधों का मजमुआ नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के माहिरीन नबातात, महक़क़ीन और माहौलियाती मुहाफ़िज़ों की नर्सरी है, जहाँ इल्म फितरत की खुशबू में सांस लेता है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने का एक ही वाहिद जरिया ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाया जाए, छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाए। जब माहौल खूबसूरत होगा तो सब कुछ खूबसूरत होगा। फरहान मिर्ज़ा, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुल्तान। और हाफिजाबाद में ईद के मौके पर जानवरों की आलाइशें उठाने और सफाई करने वाले वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी वर्कर्स में एजाज़ी चेक तकसीम किए गए। वज़ीर आला पंजाब के कोऑर्डिनेटर सायरा अफजल तारड़ ने सैनिटरी वर्कर्स में चेक और तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब करते हुए सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में सूबा पंजाब तरक्की के मनाजिल तय कर रहा है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज का एक फ्लैगशिप और इनकलाबी प्रोग्राम है, जिसके तहत ईद के मौके पर सफाई के मिसाली इंतजाम किए गए। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और वर्कर्स ने जिस जांफशानी फर्शनासी से काम किया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने कहा कि मुखालफिन जितनी मर्जी तनकीद कर रहे हैं, तरक्की और कामयाबी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और कायदीन के नाम लिखी जा चुकी है। ज़िला पाकपतन में भी सुथरा पंजाब के 2000 से ज़्यादा सैनिटरी वर्कर्स में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से 10,000 रुपये फ़ीकस के हिसाब से चेक्स तकसीम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्बास अली हारफी। ईद उल अजहा के तीनों रोज कुर्बानी के जानवरों की अलाइशों और बाकियात को इकट्ठा करके
ان کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے اور صفائی کے بہترین انتظام کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ضلع پاکپتن اور اس کی دونوں تحصیلوں میں ستھرا پنجاب کے سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں 2300 سے زائد سینیٹری ورکرز میں 10,000 روپے فیکس کے حساب سے چیکس تقسیم کیے گئے۔ یہ جو ستھرا پنجاب ہے یہ ایک حکومت پنجاب کا لینڈ مارک پروجیکٹ ہے، جس سے ہماری جو پبلک ہیلتھ اینڈ ہائیجین جو ہے یہ بہت بہتر ہوگی اور اس سے بہت ساری بیماریاں بھی بچیں گی۔ ہمارے شہر دیہات گھر سب صاف ستھرے۔ اسپیشل مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم ہیں، انہوں نے ان کو تحفہ دیا ہے 10,000 روپیہ فی سینیٹری ورکر۔ ممبر نیشنل اسمبلی و چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی وفاقی پارلیمانی امور رانا ارادت شریف خان اور ڈپٹی کمشنر پاکپتن ماریہ طارق نے ستھرا پنجاب کے فوکل پرسنز افتخار علی اور ہمایوں حاذق کے ہمراہ سینیٹری ورکرز میں چیکس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ستھرا پنجاب پروگرام سے جہاں پنجاب بھر کے شہر صاف اور خوبصورت ہوئے ہیں، وہیں کیش پرائز ملنے پر سینیٹری ورکرز کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ عباس علی عارفی، پی ٹی وی نیوز، ڈسٹرکٹ پاکپتن۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے ضلع وہاڑی میں ستھرا پنجاب پروگرام کے 3,000 سے زائد ورکرز کو عید الاضحیٰ پر صفائی کے بہترین انتظامات کرنے پر 10,000 روپے فیکس اعزاز سے نوازا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں وہاڑی سے بہادر حسین۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی علائشوں کو بر وقت ٹھکانے لگانے اور صفائی کے بہترین انتظامات کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کو 10,000 روپے کا اعزازیہ دینے کے لیے وہاڑی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی کی زیر صدارت ہونے والی تقریب میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سید ساجد مہندی سلیم، رکن صوبائی اسمبلی ملک نشیر انجم لنگنیال نے مہمانان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز میں پے آرڈر تقسیم کیے۔ صفائی ورکرز کو بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شرکا نے کھڑے ہو کر تالیاں بجا کر صفائی عملے کی خدمات کو سراہا۔ سینیٹری ورکرز نے اعزازیہ ملنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ جو لوگ شہروں میں آ رہے تھے جا رہے تھے تو ان کی طرف سے ہمیں وہ والی جو شکایت آتی ہے روٹین میں کہ سمیل آ رہی ہے، صفائی نہیں ہے، وہ نہیں تھی اس دفعہ۔ اس طرح آپ نے اس دن محنت کی، کام کیا، میں کہتا ہوں اس کی آج تک پاکستان جب سے بنا ہے مثال نہیں ملتی۔ مقررین نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی طرف سے اعزازیہ ورکرز کی محنت کا اعتراف ہے۔ صفائی ورکرز ہمارے اصل ہیروز ہیں۔ رات دن ہم نے بقرعید کے دوران محنت کی ہے، اس کا ہمیں 10,000 روپیہ دیا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں اس چیز سے کہ وہ ہمیں بہت زیادہ عزت دے رہی ہے۔ صفائی ورکرز میں پے آرڈر تقسیم کرنے کے لیے ضلع وہاڑی کی تینوں تحصیلوں وہاڑی، میلسی اور بورے والا میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ستھرا پنجاب پروگرام کے ورکرز کی حوصلہ افزائی کرنا ایک اچھا اقدام ہے، جس سے ورکرز میں مزید لگن اور دل جمی سے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ بہادر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، وہاڑی۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید ہبس زدہ رہے گا۔ تاہم کشمیر، بالائی پنجاب میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا، اسلام آباد، گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے، جبکہ خطہ پٹھار، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے۔ جنوب مشرقی سندھ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب، جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہا۔ ناظرین، کھیل میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نیوزی لینڈ نے ہاکی نیشنز کپ اپنے نام کر لیا ہے۔ کوالالمپور میں کھیلے گئے فائنل میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف 2 کے مقابلے میں 6 گول کر کے اپنے اعزاز کا کامیابی سے دفاع کیا۔ پہلے کوارٹر میں نیوزی لینڈ نے 2، دوسرے کوارٹر میں 3 اور چوتھے کوارٹر میں 1 گول داغا۔
पाकिस्तान की जानिब से ज़िक्रिया हयात और सुफियान खान गोल करने में कामयाब रहे। पाकिस्तान ने पहली मरतबा हॉकी नेशंस कप का फाइनल खेला। From the penalty corner for Pakistan. Not many celebrations from Pakistan for that. Their pride will come from making the final. पाकिस्तान ने एशियन वॉलीबॉल नेशंस कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बहरीन में खेले जा रहे इवेंट के क्वार्टर फाइनल में कौमी वॉलीबॉल टीम ने इंडोनेशिया को 3-1 से मात दी। इंडोनेशिया ने पहला सेट 20-25 से जीता। पाकिस्तान ने कमबैक करते हुए अगले 3 सेट 25-21, 25-20 और 25-17 से जीतकर लास्ट 4 के लिए क्वालिफाई किया। और अब खबर शामिल करते हैं क्रिकेट की। नाज़रीन, कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया। नेशनल क्रिकेट अकादमी में होने वाले कैंप में 13 खिलाड़ियों ने शिरकत की। क्रिकेटर्स ने फिटनेस सेशंस के साथ फील्डिंग, नेट सेशंस और सिनेरियो बेस्ड मैचेस में अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। कैंप का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा, जिसमें 15 खिलाड़ी शरीक होंगे। खिलाड़ियों में आमिर जमाल, अली रजा, फ़खर जमान, हैदर अली, हुसैन तलत शामिल हैं। ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद फ़ाइक, मोहम्मद नवाज़ भी कैंप का हिस्सा हैं। मुबस्सिर खान, मोहम्मद इरफान खान, सऊद शकील, शाहिद अजीज़ और यासिर खान दूसरे मरहले में शामिल होंगे। एबटाबाद में कौमी मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। पाकिस्तान आर्मी और वाबडा की टीमें सर फहरिस्त हैं। 17वीं कौमी खवातीन चैंपियनशिप में पाकिस्तान वाबडा और पाकिस्तान आर्मी की टीमें अब तक 2-2 गोल्ड मेडल्स जीतकर मेडल्स टेबल पर मुश्तरका तौर पर पहले नंबर पर है। पंजाब की टीम 3 कांसी के तमकों के साथ दूसरे, जबकि हायर एजुकेशन कमीशन की टीम 2 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतकर तीसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरे दिन के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए गए। नाज़रीन, बात कर लेते हैं फुटबॉल की। तो जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख फीफा क्लब वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के मियामी गार्डन्स में खेले गए मैच में बायर्न म्यूनिख ने अर्जेंटीना के बोका जूनियर्स को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। 18वें मिनट में हैरी केन ने गोल करके बायर्न म्यूनिख को बरतरी दिलाई। 66वें मिनट में बोका के मिगेल वैलेंटिन ने गोल करके मुकाबला बराबर कर दिया। 84वें मिनट में माइकल ओलिसे ने फैसलाकुन गोल करके बायर्न म्यूनिख को फतह से हमकिनार किया। इस फतह के साथ बायर्न की टीम ग्रुप सी में 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर आ गई है। सिएटल में ग्रुप ई के मैच में इतालवी क्लब इंटर मिलान ने जापानी क्लब ओरावा रेड डायमंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से मात दी। न्यू जर्सी में ग्रुप एफ के मैच में ब्राजीलियन क्लब फ्लोमिनेंसी ने जनूबी कोरिया के फुटबॉल क्लब ऑल्सन एचडी को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। वर्ल्ड नंबर 2 स्पेन के कार्लोस अल्काराज की फतूहात का सिलसिला जारी है। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। जमहूरिया चेक के यूजी लहिट्स्का ने बरतानिया के जैक ड्रिपर को शिकस्त देकर इवेंट से चलता किया। बरतानिया में खेले जा रहे इवेंट के सेमीफाइनल में कार्लोस अल्काराज ने हमवतन रॉबर्टो बाटिस्टा आगेट को हरा दिया। अल्काराज ने बाटिस्टा आगेट को स्ट्रेट सेट्स में 6-4 और 6-4 से ज़ेर किया। अल्काराज की ये लगातार 17वीं जबकि मजमूई तौर पर करियर की 250वीं मैच फतह है। और नाज़रीन, खेल से फिल वक्त इतना ही। अब आपको लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया समी। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा पहुंचा अपने इख्तिताम को। रिजवान अली अहमद और हम हमारे खुद दीजिए इजाज़त। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।